Good morning to all. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. Okay. So yesterday lecture, all understand? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. So whatever we are doing in the class, so mostly things I will cover, राइट. सो जो भी चीजें हैं हम कवर करेंगे क्लास में, तो आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं. आप जैसा भी हो आप अपना नोट्स बना सकते हो. आप अपने नोट्स बना सकते हो बेटा. आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो उस टाइप से नोट्स बना सकते हो. मोस्टली चीजें हम कवर कर लेंगे अपने क्लास के अंदर, ठीक है. तो कुछ बच्चे क्योंकि कल पूछ रहे थे मैम नोट्स कैसे बनाना है, तो वो आपके ऊपर है. आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो उस टाइप से नोट्स बनाना है. क्वेश्चंस वगैरह हम साथ साथ देते चलेंगे आपको, तो आप वो बनाते चलें. ओके. माय screen visible to you people? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. बेटे आवाज आ रही है मुझे मेरी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Okay. So we are doing the atomic structure. So in the yesterday class, we have seen the Bohr theory, we have seen the different concepts, and we have seen the Planck quantum theory also, right? So from the idea of the Bohr and how that Bohr theory is correlated with the Heisenberg uncertainty principle and the nature of wave. So today we are doing these all the things in today's class, right? So you all know the dual nature of wave, right? Means wave, whatever your electron is there, so they are showing that they are giving you the nature of the wave, like wave behavior as well as like a particle behavior. तो आप जैसे वेव का वेव को जैसे देखते हैं, वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, यू आर सेइंग दैट दैट इज शोइंग एज ए डुअल नेचर. जैसे वेव है आपका, वेव के जैसे भी बिहेव करता है और पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करते हैं, राइट. So from this de Broglie relation, you have seen that E is equal to h nu and h c over lambda, right? And from the de Broglie equation for the matter wave, you have seen E is equal to mc square, right? So from these both the equation, you having the mc square is equal to h c over lambda. So finally, you having the lambda is equal to h over mc. और आप एच ओवर पी भी लिख देते हो इसको, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन, यू आर सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस. इट्स like that is showing like a wave nature as well as the metal nature, right? तो उसका वेव नेचर भी होता है और आपका पार्टिकल नेचर भी होता है, राइट. सो जो भी आपकी रेडिएशंस है, दे आर आल्सो लाइक ए डुअल नेचर. तो डी ब्रोगलिक जो हमारा साइंटिस्ट था, he have proposed that matter have particle nature
but they also have wave nature. तो उनका दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, राइट. So now, how you will relate the de Broglie concept with the Bohr concept? Bohr concept से आप इसको कैसे relate करेंगे, right? So how de Broglie concept is in accordance with the Bohr's in accordance with the Bohr's postulate. Or how this is confirming your Bohr concept, or it confirm Bohr's concept. ठीक है. तो आप लोगों के पास डी ब्रोगली रिलेशन से आपके पास आता है h is equal to h lambda is equal to h over mv, right? And from the Bohr concept you are saying that mvr is equal to nh over 2 pi आप भी बोलते हो, right? So जो आपका ये है as per the constructive interference, like your wave is moving, कोई भी wave है आपकी, like this is moving, तो means if it is moving like in this way, आपका दोनों ही कनेक्ट हो गया है. So ये जो आपकी क्रस्ट और ट्रफ है, so this distance is the lambda, and this interference you are saying that is the constructive interference. यदि ये नहीं ज्वाइन होगी आपस में तो मीन्स दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट. सो बोहर कॉन्सेप्ट से आपके पास आया था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, राइट. इंटीग्रल जो मोमेंटम है दैट इज सम होल नंबर इंटीग्रल, राइट. So radiation, you are saying that if radiation is in the phase, right? So the radiation you can say how to be in phase. Phase में होना चाहिए, right? If electron is moving like a wave around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, राइट. एंड इट इज ए नॉन रेडिएटिंग वेव. सो देन यू कैन, ये एक सर्कल टाइप में हो गया है, राइट. सो देन its circumference is given by 2 pi r is equal to n lambda, जो हमने lambda दिया था, right. So this is only possible if wave has whole number multiple. ये कभी possible होगा जब ये whole number multiple के इक्वल होता है, right. So lambda is equal to 2 pi r over lambda, right. जो n का वैल्यू है that should be whole number multiple. So now you having the equation number, this is 2 equation, and as per the de Broglie this is the first equation, right. So lambda की वैल्यू आई है हमारे पास और ये भी lambda से ही हमारी आई है, 2 pi over n है बेटा ये, right. So we are equating the equation 1 and 2, right. 2 pi r over lambda
sorry, n is equal to h over mv. ठीक है, so h over mv आपका आ गया. So you can say mvr is equal to nh over 2 pi. इसको हमने बैलेंस करा है. So you can see this is the postulate of the Bohr, right? So now from the equation, आपने डी ब्रोगली इक्वेशन से जब रिलेट किया सर्कमफ्रेंस को, तो आपका जो इक्वेशन निकल के आई है that is related to the Bohr postulate, right? So means डी ब्रोगली confirms Bohr's postulate or concept, right? बेटा क्लियर हुआ कैसे दोनों आपस में इंटरलिंक है? Yes, ma'am. Is it clear to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब नाउ हम बोलते हैं कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है या जो भी है, ये इक्वेशंस जो हमारे पास आती है डी ब्रोगली की या बोहर की, राइट? So we are saying that this lambda is equal to h over mv. This is having the significance only for the microscopic particle, right? So for microscopic particle, you can take some example also to prove this one, right? Wave can be seen by the particles. जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन एक ले लें, या हम कोई कार का एग्जांपल ले लें, और दोनों को हम, क्योंकि मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है और कार का मास, तो यू कैन टेक 100 kg एंड समथिंग, राइट? और जब भी आप इनकी वैल्यूज निकाल के देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जब हम लैम्डा निकालते हैं दैट इज हैविंग द सिग्निफिकेंट वैल्यू, लेकिन जब कार के निकालने लगेंगे दैट इज कमिंग वेरी वेरी लेस, राइट? तो वो आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे. तो आप इसको कैलकुलेट करके भी आप बता सकते हो, तो कैलकुलेट करके एक बार देखना, ठीक है? नाउ वी आर डीलिंग विद द डिफरेंट वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? हमारे पास 2 टाइप्स की वेव आपने पढ़ी हुई है, like radiations, like electromagnetic waves, और आपने पढ़ी हुई है मैटर वेव्स, राइट? दोनों वेव आपने पढ़ी हुई है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपने कई जगह पे फिजिक्स में भी देखा होगा, राइट? और जब मैटर वेव का बात करते हैं तो मींस दैट इज रिलेटेड टू द योर Sound waves and साउंड, हाँ, राइट, water. राइट? तो मैटर वेव जो है दैट इज फॉर द, यू कैन से फॉर द सम पार्टिकल आल्सो, यू कैन से, राइट? और वो जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, राइट, दैट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करेगी, राइट? और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दैट कैन गो इनटू द वैक्यूम, राइट? डू यू नो दिस वेव्स? Yes, ma'am. पढ़ा है ना? Yes, हाँ, ma'am. ठीक है. Yes, तो आप ma'am. बता सकते हो दोनों को ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, राइट? Vacuum. Vacuum also. हाँ बेटा, Nothing, ma'am. ओके. एंड दे कैन नॉट, राइट? ये ट्रेवल नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आपकी, वो दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, राइट? अब स्पीड और वेलोसिटी की यदि बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और इसकी मैटर वेव की, तो स्पीड और वेलोसिटी कितनी होती है बेटा इनकी? Ma'am, same as light, 3 into 10 to the हाँ, power 8. हाँ, तो इसकी तो 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है. और वेलोसिटी की इसके अंदर जो मैटर वेव है, मैम इनकी डिफरेंट होती है. हाँ, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मास Yes, ऑफ द Ma'am, ऑब्जेक्ट. density on the subject. हाँ, राइट. तो ये जो आप जो यूज करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? थर्ड थिंग, इफ यू आर सीइंग द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब भी हम करते हैं, राइट? सो तो आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, दे आर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? और ये जो है मैटर वेव जो आप बात करते हैं, दे आर नॉट एसोसिएटेड, ठीक है? व्हाट एल्स?
इसका हाँ बाहर नीचे है, बाहर अलमारी में बाहर। So, if wavelength you want to calculate for the electromagnetic wave, you can calculate, right? Lambda can be calculated. हाँ उसके नीचे can be calculated. लेकिन इसके अंदर they have no physical significance for the large object, right? Only significance for the microscopic particle. यदि आप जो है कैलकुलेट करेंगे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे, राइट? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज करते हैं. सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द सम सोर्स, इट इज इमिटेड बाय सोर्स. और ये जो मैटर वेव है दे आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल. ठीक है, तो ये जो था दे आर द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट वेव्स एंड द रेडिएशंस, राइट? नाउ वी हैविंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बेटा सिग्निफिकेंस पता चल गया इसका डी ब्रोगली इक्वेशन का? Yes, ma'am. ठीक है, ये Yes, आपको Yes, जब भी ma'am. एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप ये इक्वेशन बता देंगे, इसका सारा बता देंगे. और सिग्निफिकेंस को जब भी आपको प्रूव करना पड़े तो यू कैन टेक सम एग्जांपल आल्सो. ठीक है, एग्जांपल लेके फिर बता देना कैलकुलेट करके, तो वो इजीली आपको मार्क्स भी अच्छा मिलता है और आप अच्छे से बता पाते हैं. द अदर प्रिंसिपल इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, matter waves are also called de Broglie waves. हाँ, डी ब्रोगली का जो है उसी के कॉन्सेप्ट से हमारे पास मैटर वेव को मैं एक्सप्लेन कर रही थी. हाँ Okay. ठीक है ना. Thank you. दिस वेव आर एसोसिएटेड विद द माइक्रोस्कोपिक, राइट? तो हमारा जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो है, जो इक्वेशन हमारे पास आई है, उसकी भी लिमिटेशन क्या है कि दैट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द स्मॉल साइज पार्टिकल, राइट? तो इसलिए हमने मैंने दोनों ही वेव्स को लेके फिर हमने देखा कि भाई दोनों वेव्स क्या है, राइट? हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ते हैं, हम मैटर वेव भी पढ़ते हैं, राइट? तो मैटर वेव दैट इज रिलेटेड टू द पार्टिकल. और हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हैव अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर, राइट? तो हम उसके लिए मैंने फिर डिफरेंस इसलिए आपको क्लियर करने के लिए, कुछ बच्चों को पता है कुछ को नहीं पता होगा, तो जस्ट हम डिस्कस करने के लिए मैंने वो ले लिया. ठीक है, ओके. नाउ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें भी कई बार आपसे इक्वेशन भी पूछ लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस भी पूछ लेते हैं, राइट? So you all know there is not possible to calculate at the same time the position and momentum, right? हाँ, एक ही टाइम पे दोनों चीजें नहीं निकाल सकते, right? So it is impossible to measure both position and momentum. Of a particle accurately and simultaneously. And you can say it is for small microscopic particle of the order of atomic structure type के आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, इट इज ओनली यू कैन से फॉर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो किस टाइप का पार्टिकल है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, राइट? उसको देखते हुए हम बता रहे हैं कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, राइट? सो डेल्टा एक्स into delta p that should be equal to or that is greater than that of the h over 4 pi, right? तो आप यदि आपका पोजीशन निकल जाता है तो मोमेंटम आपका सही नहीं निकलेगा, यदि आपका मोमेंटम निकल जाता है तो आपका पोजीशन सही नहीं निकलता है, राइट?
सो ये यू कैन से ये दोनों ही टर्म जो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आ जाती है, राइट। सो यू कैन से यदि डीमेरिट देखे बोहर की, राइट, वो बोहर ने भी यही बोला था कि ये जो चीजें हैं दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ड्यूअल नेचर, राइट। बोहर ने बोला था, बोहर का क्या था कि उसने बोला था जो आपका इलेक्ट्रॉन है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ड्यूअल नेचर, राइट। लेकिन हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से प्रूव किया कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है दे आर हैविंग द ड्यूअल नेचर, राइट। एंड द बोहर ने जो दिया था ही वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। सो उसने जो उसके एज पर द बोहर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द बोहर, राइट, उसने जो आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसको करेक्टली नहीं बताया था, राइट। He was not in accordance with the Heisenberg uncertainty principle because according to this model definite path of electron is not possible, right। और बोहर ने तो सारी चीजें जो इसकी इक्वेशन में उसने दिया था कि एक साथ कुछ भी निकाल लो निकल जाएगा, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता चल गया कि दोनों चीजें एक साथ नहीं निकल सकती है, राइट। अब आपका जो है यहाँ पे अब एक असाइनमेंट मैं दे रही हूँ, असाइनमेंट 1 आप मान सकते हो। इसमें क्या है आपको जो है बोहर मॉडल जो आप करेंगे, इसमें बोहर मॉडल के क्या क्या करेंगे, पोस्टुलेट्स आ जाते हैं आपकी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी आ जाती है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में किया है तो हाइड्रोजन एटम के लिए कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, आपके जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, उसकी जो कैलकुलेशन है वो देख लेना, देन उसका सिग्निफिकेंस हम देख लेंगे, वो आपको लिखना है मतलब। फिर आपका डी ब्रोगली रिलेशन जो आपका आ गया उसका सिग्निफिकेंस, राइट। और बोहर की जो है मेरिट और डीमेरिट, डीमेरिट ये आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे। समझ में आया बेटा क्या क्या करना है? मैम Yes, प्लीज ये जो एक्सक्लूड है दिस डीआर। डीआर इज डी ब्रोगली रिलेशन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है। ओके मैम। ये सभी चीजें आपको सत्या प्रकाश से भी मिल जाएगी, ठीक है। मैम ये असाइनमेंट नोट्स से अलग है क्या? मतलब नोट्स बना रहे हैं उससे अलग? हाँ, असाइनमेंट नोट्स में ही लिख लो चलेगा, ओके मैम। ठीक है ना। वो आपकी तैयारी हो जाएगी और ये मैं देखना चाहूंगी तो मैं आपकी नोटबुक में ही देख लूंगी, ठीक है। ओके मैम। आप असाइनमेंट ऊपर डाल दो, असाइनमेंट 1 में आप क्या नोट्स भी बना रहे हो तो आप सारी चीजें लिख रहे हो ना साथ में, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में ही लिख लो और ऊपर डाल देना असाइनमेंट नंबर 1 जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें की है, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे आपका एक मतलब पार्ट जो है सिलेबस का खत्म हो जाता है, राइट। अब नाउ वी हैविंग द अदर थिंग दैट इज द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, राइट। अब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब भी हम करेंगे, राइट, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे पास उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे, राइट। और हम देखेंगे भी कि कैसे कैसे डिफरेंट थिंग, जैसे आपके ऑर्बिटल्स है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल दैट इज 1s ऑर्बिटल यदि हाइड्रोजन का ले रहे हैं या हीलियम और नियॉन का ले रहे हैं तो दोनों ही डिफर करते हैं, राइट। आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी देखेंगे कि कैसे एनर्जी और डिस्टेंस कैसे आप निकाल पा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे उसका रिलेशन है। एल जो है दैट इज इफ 0 मींस दैट इज गिविंग द स्फेरिकल शेप, और जो आपके जो डिफरेंट जो क्वांटम नंबर है दे आर कमिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्लास।
सो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे पास ये सारा इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, राइट। सो वी आर डूइंग द स्क्रोडिंगर इक्वेशन, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, राइट। सो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन करने से पहले हमारे पास एक दो टर्म्स आती है, उसको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज द साई। साई क्या है? दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन विच इज कॉल्ड एज द वेव फंक्शन। आप इसको वेव फंक्शन भी बोल देते हैं, राइट। And psi, if you are seeing in the wave, that is represent the amplitude, right, of the electron wave at various points surrounding the nucleus. सो जब भी हम इसको करेंगे, राइट, तो इसके अंदर हमारे पास जो वेव आ रही है इलेक्ट्रॉन की और स्टैंडिंग वेव को कैसे हम बता रहे हैं, बोथ द इलेक्ट्रॉन, यू कैन से बोथ द इलेक्ट्रॉन and standing wave has one thing common. क्या कॉमन है उसमें? That is the electron move under the constraint of the attraction of nucleus. And the stretch string हम क्योंकि दो पॉइंट हम लेंगे और उसके बीच में एक स्प्रिंग जैसे बंधा हुआ है, उसको हम वाइब्रेट कर सकते हैं, राइट। सो जो आपकी स्ट्रेच स्ट्रिंग है दैट इज फिक्स्ड, उसको हम फिक्स रखेंगे एट इट्स एंड, एंड ये जो है दैट इज आल्सो अंडर कंस्ट्रेंट, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव विद द इलेक्ट्रॉन वेव, राइट। और जो आपकी इक्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल टू द स्टैंडिंग वेव, राइट। इलेक्ट्रॉन वेव और स्टेशनरी जो वेव है उसके लिए आपकी जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल है, राइट। सो यू कैन से द स्क्रोडिंगर, जो साइंटिस्ट है दैट इज स्क्रोडिंगर compare electron wave to the stationary wave. तो उसने क्या किया, उसने एक 2 पॉइंट्स ले लिए और उससे उसने जो है स्प्रिंग को जो है टाई कर दिया, राइट। सो आपकी जो ये जैसे, राइट। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड हमने ले लिया, ये जो डिस्टेंस है ये x हो गया आपका, राइट। सो जो इसकी स्टेशनरी वेव यू कैन से वेव is like a stretch string at
2 points, राइट। और जो 2 पॉइंट्स है ये फिक्स्ड है, राइट। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है और दैट इज आल्सो मूविंग अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। आपका जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो भी न्यूक्लियस की अंडर ही होता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन मूविंग is also under the constraint of the attraction of nucleus. तो आप यही बताते हैं for any stationary wave you are writing like psi is equal to a sin 2 pi x over lambda, right। सो जो साई जो है आपका, यहाँ पे हम साई x मान लीजिए, राइट। सो साई x इज द एम्पलीट्यूड इन x डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम एक तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, एक हम हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन भी यूज करेंगे, h ओवर mv। ये आपकी डी ब्रोगली रिलेशन इक्वेशन है। ये हम मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, 2 इक्वेशन रहेगी। और एक हम जो है टोटल एनर्जी, यू ऑल नो द टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा बाद में यूज करेंगे, ठीक है। सो यू ऑल नो द स्टेशनरी वेव साई दैट इज इक्वल टू a into sin 2 pi x over lambda, राइट। उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया नाम, राइट। सो नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, डबल डिफरेंशिएशन मैं कर रही हूँ, राइट। सो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए, जो कॉन्स्टेंट आपका आगे आ जाता है, 2 पाई ओवर लैम्डा, देन कोस 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ठीक है। आप सभी को आता ही है ये। देन सेकेंड डिफरेंशिएशन, डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं अभी, ठीक है। ए 2 पाई ओवर लैम्डा, अगेन 2 पाई ओवर लैम्डा, माइनस साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ठीक है। सो माइनस विल कम इन फ्रंट, 2 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर भी हमने फ्रंट में ले लिया है। और जो ये ऊपर वाली इक्वेशन थी a साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये जो फर्स्ट टर्म है और इनको साथ में रखती है, ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी दैट वाज साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा, ये जो है साई के इक्वल ही है ये वाली पूरी टर्म, राइट। सो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर ओवर लैम्डा स्क्वेयर साई। इज इट ओके बेटा? यहाँ तक सभी को ठीक है? किसी को कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो बता देना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव प्रोपेगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव propagating in x direction, ठीक है। अब now when electron wave is propagating in all the 3 direction, यदि सभी डायरेक्शन में जाए, then we have to take the direction x, direction y and direction z, हमें सभी लेना पड़ेगा, राइट। तो अभी पहले हम इसके लिए करते हैं, x डायरेक्शन के लिए। we are taking this term here on the left hand side, d square psi over dx square plus 4 pi square over lambda square psi is equal to 0. Now, if the direction in the all the 3 direction and for the electron wave in 3 dimension,
then d square psi over dx square plus d square psi over dy square plus d square psi over dz square 4 pi square over lambda square psi, ये प्लस में है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये तो सेम ही रहेगी और हमने जो डायरेक्शंस है वो तीनों डायरेक्शन में आ गया है। अब नाउ दिस साई इज द फंक्शन ऑफ द एक्स वाई एंड जेड, राइट, so that is equal to 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, राइट। अब नाउ दिस थ्री इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड थ्री जेड डायरेक्शन, जब भी तीनों का डिफरेंशिएशन है, इसके लिए हम इसको एक ऑपरेटर से रिप्लेस कर देते हैं। सो डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ओवर डी वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ओवर डी जेड स्क्वेयर, ये जो टर्म है that is equal to the inverted del, so del square से हम इस टर्म को रिप्लेस कर देते हैं। del is the Laplacian ऑपरेटर, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है Laplacian ऑपरेटर, ये कई बार पूछ लेते हैं। तो ये del इन्वर्टेड del होता है और ये इस टर्म के इक्वल होता है, राइट। सो आई एम इंसर्टिंग दिस Laplacian ऑपरेटर इन द अबव इक्वेशन। So del square and psi is common, so psi plus 4 pi square over lambda square psi, that should be equal to 0। ये हमारी आ गई स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Now I am using the de Broglie equation जो हमारी थी lambda is equal to h over mv, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करेंगे। सो फर्स्टली आई एम स्क्वेयरिंग दिस ऑन द बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। सो आई एम इंसर्टिंग दिस, पुटिंग दिस वैल्यू of 1 over lambda square in equation, in the above equation कर देती हूँ, ठीक है। नंबर आप खुद डाल लेना, मैं नंबरिंग नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। यदि मैं इस इक्वेशन को मान लीजिए 3 4 जो भी मैं रख देती हूँ, यदि आपको a रख देती हूँ, चलो ठीक है। सो आई एम इंसर्टिंग इन अबोव इक्वेशन a, ठीक है। तो नाउ देन del square psi plus 4 pi square psi m square v square over h square, that is equal to 0, right। अब नाउ ये तो हमने डी ब्रोगली की इक्वेशन इसमें फीड कर दी है। नाउ आई एम टेकिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। टोटल एनर्जी हम लेंगे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैं v से रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। सो यू कैन से E माइनस v दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर को हम निकाल लेते हैं, स्मॉल v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m E माइनस v, ठीक है। थोड़ा कैपिटल V से मैं लिख देती हूँ, कुछ गड़बड़ करा मैंने शायद, मेरे को लग रहा है, हाँ। that 2 is coming upside and m is coming downside, is it okay बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now I am putting this one in equation, वो अपर वाली हमने a लिख दिया था उसको, तो इस वाली इक्वेशन को मैं b लिख देती हूँ जब हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन इंसर्ट करने के बाद आई है, राइट। सो आई एम इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ v square in equation b, right। so del square psi plus
4 पाई स्क्वायर साई m स्क्वायर 2 e माइनस v डिवाइड बाय m h स्क्वायर इक्वल टू 0. So I am crossing m क्रॉस हो गया आपका. ठीक है. So we are coming the equation del square psi plus 8 pi square psi plus h square e minus v m equal to 0. Right. So this is the, इसमें देखिए आपके पास कुछ भी टाइम टर्म नहीं है, टी का टर्म नहीं है ना बेटा इस वाली इक्वेशन में. नो मैम. नो मैम. तो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ठीक है. ये आपका जेडी ली में भी दिया हुआ है, हुई में भी मिलेगा, सत्य प्रकाश में भी मिलेगा, तीनों में ही दिया हुआ है. क्योंकि आप वेव को यदि देखें, उसका वेव फंक्शन जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन भी देखते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट भी देखते हैं. राइट. अभी आपके सिलेबस में जो है टाइम डिपेंडेंट वाली नहीं है, तो इसके अंदर क्योंकि टी टर्म नहीं है, तो दैट वाई दिस इक्वेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो स्टैंडिंग वेव ही है. राइट. दिस इज इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द स्टैंडिंग वेव. राइट. और फॉर द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये या तो स्टैंडिंग वेव के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन जो आपकी है एप्लीकेबल है. राइट. सो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट इज द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है. सो इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम and they can ask the different term involved in this. Next class. So इसमें जो भी डिफरेंट टर्म्स है, डेल है आपका, ई है, वी है, ये सारी जो टर्म्स है कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं. तो आप जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसको बताएंगे. यदि कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन, यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन for the electron in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए आपसे पूछ लेते हैं. ठीक है. हाइड्रोजन एटम के लिए जब भी आपसे पूछेंगे तो हाइड्रोजन एटम का चार्ज, एटॉमिक नंबर और चार्ज दैट इज इक्वल टू द 1. राइट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है V दैट इज इक्वल टू Z स्क्वायर ओवर R होती है. राइट. तो वो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं. राइट. जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है. राइट. तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर. राइट. एंड इन द ब्रैकेट e माइनस b का वैल्यू मैं इंसर्ट कर रही हूँ, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है. ESI यूनिट में हम क्योंकि देखेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज एंड आफ्टर द ब्रैकेट देयर इज अ साइड टर्म इज आल्सो लेफ्ट 0. राइट. अब यहाँ पर जो Z की वैल्यू है, यदि हाइड्रोजन एटम के लिए कोई पूछ रहा है तो दैट शुड बी इक्वल टू 1. वो 1 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे आप और आपकी इक्वेशन आपके लिए आ जाएगी. ये टोके बेटा समझ में आया? यस मैम. Yes, ma'am. Excuse me, Excuse me, ma'am. ma'am. हाँ बेटा. Ma'am, please repeat for hydrogen atom. The expression हाइड्रोजन for एटम के electron लिए in मैंने hydrogen बोला, atom. हाँ मैंने बोला जो भी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होती है दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ओवर आर. ठीक है. तो जेड स्क्वायर ओवर आर जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे. आपका जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, आपने ये जो इक्वेशन अपर में जो मैंने लिखा था इसके अंदर ई माइनस वी टर्म है आपके पास, है ना. ठीक है. वी टर्म की जगह पे जो हम इसकी वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की वो लगा देते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए. ठीक है. तो जो वैल्यू होती है वो होती है जेड स्क्वायर ओवर आर.
राइट. सो आई एम फीडिंग दिस इक्वेशन इनटू द E माइनस V टर्म के अंदर. तो V की जगह पर मैं ये फीड कर देती हूँ. एटॉमिक नंबर यू नो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, चार्ज भी 1 है वहां पर. ठीक है, तो वो जो वैल्यू है मैंने इंसर्ट कर दी. ये जेड की वैल्यू भी मैं इंसर्ट कर दूंगी, तो ई स्क्वेयर ओवर आर रह जाता है. राइट, जेड को भी आप रिमूव कर देंगे 1 से. राइट, तो आपकी जो वैल्यू बच जाएगी ई स्क्वेयर ओवर 4πε0 आर बच जाती है. ठीक है, इज इट ओके? ओके मैम, थैंक यू. हाँ, आप डिफरेंट टर्म्स भी बताएंगे. साई क्या है? दैट इज एम्पलीट्यूड. हाँ जी बेटा. Ma'am, is this expression only for hydrogen atom or hydrogen like atom also? हाइड्रोजन लाइक एटम आल्सो. ठीक है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, So ma'am, value of Z can be changed. जेड की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है अभी तक सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम कर रहे हैं. ठीक है ना, Or नहीं तो and it is also for hydrogen like atoms. हाइड्रोजन लाइक एटम. राइट, लेकिन ये अभी जब Okay. फ्यूचर में जब आप बहुत ज्यादा क्वांटम वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें फिर दूसरे एटम्स के लिए भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन होके हम यूज करते हैं. राइट, अभी हमारे Okay, से ma'am. एग्जाम में सिर्फ पूछ सकते हैं नॉर्मल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम. राइट, और हाइड्रोजन लाइक एटम. राइट, सो जो है इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स जो आपकी इन्वॉल्व हो रही है वो भी पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं लिख रही हूँ. साई क्या है? दैट इज द एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑपरेटिंग इन 3 एक्सक्यूज मी डायरेक्शन. मैम. हाँ जी बेटा. मैम, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर हमें और भी कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे जेड की वैल्यू डालने के बाद? नहीं नहीं, और कुछ नहीं करना बेटा, आपको ऐसे ही छोड़ देना है फिर. ओके ठीक मैम. है, और इसमें जो डिफरेंट टर्म्स है उसको भी बताएंगे यदि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो. ठीक है, जैसे साई है इस इक्वेशन में, तो साई क्या है? दैट इज द एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑपरेटिंग इन 3 डायरेक्शन. एम क्या है? दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. आपका ई क्या है? दैट इज द टोटल एनर्जी. एच क्या है? दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट. And then r, that is the distance of electron from the nucleus. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता देंगे. राइट, अब नाउ in the exam they can ask what is the use of Schrodinger wave equation. बेटा Schrodinger wave equation का क्या यूज है? is the use of कृतिका की है. हाँ, so what is the use of Schrodinger wave equation? तो आपकी जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका यूज क्या है? दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल for the calculating the, you can say, when you are applying for the equation for the hydrogen atom. Right, so any electron in the hydrogen atom, you can say any electron in the hydrogen atom, we will get how the energy values are taken. ठीक है, तुम्हारी जो एनर्जी वैल्यू है वो कैसे ली गई है, और उसके लिए इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी को कैसे सोल्व करोगे. राइट, so this equation is applicable for calculating the energy of the system, for telling about the their functions, wave functions बताने के लिए, और जो है इसके अंदर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस को कैसे बताओगे आप, 3 डायमेंशंस में आपको बताना है तो वो भी आप बता पाओगे. राइट, तो ये जो है आपका स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है. This is giving the solution and telling about exactly the all the description of the electron. इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताता है ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन. राइट, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, हमें उसके बारे में एनर्जी वैल्यू कैसे ली गई है, क्या रिलेशन है, वो सारा चीजें हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चल जाता है. ठीक है, सेकेंड थिंग, व्हाट इज साई. इसके अंदर जो साई है वो क्या है? राइट, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
साई जो इसमें हम बार बार यूज कर रहे हैं वो क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में ये चीज भी, राइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इज इट ओके बेटा? Yes, ma'am. क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं कि उसको हम कैलकुलेट कर पाए, राइट। सो ये कब होगा इसका सिग्निफिकेंस? हाँ Ma'am, psi square has its significance. हाँ हाँ, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है बेटा, वो भी हम अभी डिटेल में बताएंगे आपको, राइट। सो ये जो है Yes, एक ma'am. मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, इसका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सच प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर, उसको हम मेजर कर पाए विच इज मैम अटैच। हाँ जी बेटा। मैम बट ये तो एम्पलीट्यूड होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो उसको मेजर नहीं कर सकते क्या? आप कर सकते हो क्या, मुझे बताओ कैसे करोगे? पता नहीं मैम। तो वही अभी आगे इसका सिग्निफिकेंस आएगा कैसे वही मैं बोल रही हूँ। देयर इज नो सच प्रॉपर्टी इंडिविजुअली, इसका कुछ मतलब यदि हम खाली साई लिख के छोड़ दे तो इसको कुछ नहीं बता पाएंगे, राइट। इट इज अटैच टू द इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उससे ये अटैच रहता है, और इसका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैथमेटिकली इसका सिग्निफिकेंस है। इसको जब भी किसी पे ऑपरेट कर देंगे, किसी के साथ इस फंक्शन को लगा देंगे then it have some significance, otherwise it doesn't have any physical significance, right। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बताना चाहे, राइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट, आपकी जो इंटेंसिटी होती है उसको बताने के लिए हम साई को यूज करते हैं, राइट। साई को कैसे यूज करते हैं? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है, राइट। सो साई स्क्वायर है, दिस गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई क्या देता है हमें? प्रोबेबिलिटी देता है ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। And your intensity that is directly proportional to the number of photons, means उसकी कितनी ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी होना है, तो that is also directly proportional to the density also, right। so psi square जो है इसका physical that having the physical significance, psi square क्या है? just a minute बेटा, just a minute।
हेलो। Yes, ma'am. हम्म, fill the screen. Okay. I was saying that psi square that having the physical significance because it is explaining about the density and probability of the electron finding your probability of the इलेक्ट्रॉन राइट कि ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो सारा हमें जो है साई स्क्वायर से पता चलता है राइट। सो साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है लेकिन साई का नहीं है। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं साई स्क्वायर और साई में डिफरेंस बताइए, साई स्क्वायर और साई का दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है नहीं है वो सारा पूछ लेते हैं। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस का बता दिया मैंने, इट्स डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी आल्सो। थर्ड थिंग साई जो आपका है दिस इज ऑलवेज having the positive value and the real value, and if it has any negative value then जो आपकी इसकी जो है साई की ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, रियल वैल्यू रहेगी, इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है राइट। लेकिन जो नेगेटिव है लेकिन जब साई इंटू साई करेंगे साई स्क्वायर जब हमारा आएगा दिस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा राइट। सो साई का आप बोल सकते हो साई इज हैविंग द इमेजिनरी वैल्यू आल्सो। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करके भी साई को लिख देते हैं। सो साई जो है दैट हैविंग द सम इमेजिनरी वैल्यू आल्सो राइट। साई इंटू साई स्टार करके आप बताते हो दैट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी राइट बेटा, ये आपको पता होगा शायद राइट। Yes, ma'am. राइट, सो आई का वैल्यू दैट इज इक्वल टू रूट माइनस वन राइट। सो जो आपका जो साइज स्क्वायर जो है इफ यू आर सीइंग इन द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ यदि देखें इट इज गिविंग इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी of finding the electron in small volume dB। ठीक है, तो ये जो है ये तो साइज स्क्वायर के बारे में डिटेल हो गया। अब नाउ कैसे आप बताओगे हाउ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज हैव एन आइगन फंक्शन। हमारे पास दो चीजें आती है, एक तो आइगन फंक्शन आता है, एक हमारे पास आती है आइगन वैल्यू। तो जो एनर्जी वैल्यू आती है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एनर्जी की वैल्यू उसको हम आइगन वैल्यू बोल देते हैं, और जिसमें जो फंक्शन हम लगा रहे हैं किसी भी ऑपरेटर के ऊपर उसको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं क्योंकि सेम रहता है दोनों साइड में राइट। सो हाउ इट इज हैविंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैविंग द आइगन फंक्शन मीन्स इट शुड आइगन कब होगा जब इट विच ओबे द बाउंड्री कंडीशन, जब ये बाउंड्री कंडीशन को ओबे करेगा राइट। मीन्स आइगन जो फंक्शन है इसका मीनिंग क्या है, जो आपका आइगन फंक्शन है आइगन दिस इज कमिंग फ्रॉम द जर्मन वर्ड जस्ट
So it comes from the German word meaning, its meaning is like appropriate, acceptable, like it have a characteristic significance, right? तो ये जर्मन वर्ड है, उसका जो मीनिंग होता है एक्सेप्टेबल हो जाए, अप्रोप्रिएट हो, characteristic significance हो उसका, right? So the value of, you can say, the energy you are calculating with eigen function, जो एनर्जी की वैल्यू है जो आइगन फंक्शन के साथ में आपकी आती है, दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू. एंड दिस इक्वेशन विच रिलेट द टू, लाइक हम यदि आइगन जो हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम ये भी इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, राइट. एच जो है ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, राइट. ये जो इसकी जो टर्म्स है वो हमारे पास जो हमने जो अपर में लिखी थी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसी से आती है. तो जो आपकी इसमें जो ई की वैल्यू है दैट इज फॉर द आइगन वैल्यू, राइट. और जो ये आपकी जो दोनों इक्वेशन है इसमें जो साई है, बिकॉज दिस इज स्क्रोडिंगर फंक्शन मींस आइगन फंक्शन है ये. सो जो आपकी एनर्जी की वैल्यू जो आती है इस इक्वेशन से, दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू. और जो आपका जो फंक्शन आप लगा रहे हैं आइगन वैल्यू के ऊपर या ऑपरेटर के ऊपर, दैट इज द आइगन फंक्शन. वो आइगन फंक्शन होता है और एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो आइगन वैल्यू होती है, राइट. एच जो मैंने बताया दैट इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. इसको हम एनर्जी ऑपरेटर भी बोल देते हैं, राइट. जो हम जब भी ये ऑपरेटर लिखेंगे, राइट, इसके ऊपर हमने कोई फंक्शन लगाया साई, दिस इज अ ट्रायल वेव फंक्शन यू कैन से, राइट. दैट शुड बी इक्वल टू ई साई. तो ई की जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट वैल्यू आती है, राइट. और ये वापस से जो फंक्शन है ये सेम आ गया. सो व्हेन ऑन वन वेव फंक्शन दैट इज यू आर ऑपरेटिंग ऑन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जब वर्क करता है, राइट, आपका जो वेव फंक्शन आपने लगाया, सो ई की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी कांस्टेंट. और जो कांस्टेंट वैल्यू जो ई की आई है दैट इज यू आर कॉलिंग दैट इज द आइगन वैल्यू. एंड दैट इस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, आइगन इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी बोल देते हैं, राइट. एंड देन द फंक्शन विद द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दैट फंक्शन यू आर कॉलिंग दैट इज द आइगन फंक्शन, राइट. यदि इस इक्वेशन को टर्म को यदि हमें समझना है तो मैं एक बार जो आपकी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसी को लिख के आपको बता देती हूँ. अपनी इक्वेशन थी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में हम जो है वी आर मल्टीप्लाइंग विद द माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर माइनस साथ में आएगा एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर माइनस साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई दैट इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, राइट. नाउ 8 पाई स्क्वायर एम कैंसिल आउट, एच स्क्वायर कैंसिल आउट, राइट. So finally minus h square over 8 pi square m, डेल भी साथ में है, डेल स्क्वायर प्लस मैं दोनों को खोल रही हूँ माइनस
माइनस प्लस हो जाएगा आपका, v की वैल्यू जो है प्लस में आएगी, v साई माइनस e साई इक्वल टू 0 आ गया है, राइट। तो जो आपकी टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म जो आपकी आ गई है, माइनस एच स्क्वेयर डेल स्क्वेयर ओवर 8 पाई स्क्वेयर m डेल स्क्वेयर है ये, प्लस v साई कॉमन है बाहर निकाल लिया है, e साई इज इक्वल टू 0। सो जो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ जाएगी आपकी, एच साई माइनस ई साई जो है इक्वल टू 0, एच साई दैट इज इक्वल टू ई साई। इज इट ओके बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम दैट, हाँ जी Yes, बेटा। ma'am. मैम प्लीज थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी बेटा, इज इट ओके? यस मैम। ओके। सो जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, दैट इज ऑपरेट ऑन द ट्रायल वेव फंक्शन एंड इट विल गिव द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ई। ई की जो है कांस्टेंट वैल्यू देता है, दैट्स व्हाई इट इज ए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो ट्रायल वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट हुआ और एक कांस्टेंट वैल्यू ई दे दिया जो आइगन वैल्यू बन गई, और जो फंक्शन है उसको फिर हमने फाइनली बोल दिया स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन बोल दिया और आइगन फंक्शन बोल दिया, राइट। आइगन फंक्शन बोला है, स्टार्टिंग में हम उसको ट्रायल वेव फंक्शन मान के चले थे, राइट। लेकिन क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू एनर्जी की आ गई और वेव फंक्शन हमारा वापस से सेम आ गया, दैट्स व्हाई यू हैव कॉल्ड दैट वन इज द आइगन फंक्शन। आप कोई एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हो या आप ये सिंपली भी बता सकते हो। ऑपरेटर और ये सब पढ़ा है ना बेटा आप लोगों ने? नो मैम। पढ़ा नहीं है? अच्छा No, ma'am. Ma'am. अच्छा, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल्स भी आपको भेज दूंगी, मेरे पास मिल जाएंगे। मैम हम्म, why we are reading this क्या बेटा? आइगन वैल्यू, जैसे वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, हम्म वो बताती है कि हाउ द एनर्जी वैल्यू टेकन एंड ऑल हम्म। अबाउट, देन एक्चुअली ये, व्हाई वी आर रीडिंग दिस। हाँ, जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, आपके आएगी, थर्ड ईयर में है शायद आपके क्वांटम केमिस्ट्री, तो उसमें क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लेते हैं, राइट। मैथमेटिकल कोई इक्वेशन आपको दे देंगे, ठीक है। वन साइड में कुछ ऑपरेटर आपका होगा, ऑपरेटर में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी करके आप जो है ऑपरेटर यूज करके आप निकालेंगे वैल्यू। तो जब आप ऑपरेट कर देंगे उस वैल्यू को, राइट, ऑपरेटर भी लगा देंगे और उसको डिफरेंशिएट वगैरह करके आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जब राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए और आपका जो फंक्शन है वो सेम आ जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें जो वैल्यू आई है आइगन वैल्यू आ गई है, क्योंकि फंक्शन आपका वापस से सेम आ गया, तो दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग दैट इज द आइगन फंक्शन। तो इसको मैथमेटिकल भी आप आगे फ्यूचर में प्रूव करेंगे, ठीक है। इज इट ओके बेटा? यस मैम। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द आइगन वेव फंक्शन, व्हाट विल बिहेव द वेव फंक्शन यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है, और आपका वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कौन सा होता है, ये पूछ लेते हैं। मींस क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में, व्हाट इज आइगन वेव फंक्शन क्या है, तो आप ये क्वेश्चन लिख के बता सकते हो, ठीक है। व्हाट is well behaved wave function क्या है, well behaved wave function क्या है, and how it follow the boundary condition को कैसे follow करता है। सो इसके लिए क्या है, विच आर दोज विच ओबे द सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, वो कुछ रेस्ट्रिक्शन को ये फॉलो करते हैं, ठीक है, वहां वो ही आइगन वेव फंक्शन होता है। वो कौन सी कंडीशंस है, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कंडीशंस बताएंगे, ये यू कैन से द रूल्स की फॉर्म में बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। क्या चीजें हैं? फर्स्ट थिंग, जो आपकी साई है, जो वेव फंक्शन है, दैट मस्ट बी सिंगल वैल्यू। आपकी जो वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सिंगल वैल्यू आएगी।
it must have one particular value at a point, right? It must have one particular value at a point. एक पॉइंट पे उसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू होगी, राइट? सो ये जो रूल्स में लिखती हूँ दे आर, ये जब फॉलो कर लेता है कोई भी फंक्शन तो वो अपने आप ही आइगन फंक्शन बन जाता है। ठीक है बेटा? तो आपसे जब भी कोई आइगन फंक्शन पूछता है तो आप ये लिख दीजिए, रूल्स लिख दीजिए, इक्वेशन लिख दीजिए कि आइगन फंक्शन के लिए, वेव फंक्शन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वेल बिहेव्ड कैसे होता है, कौन सी बाउंड्री कंडीशन को वो फॉलो करता है। तो आपको ये रूल्स लिखने हैं, राइट? सो फर्स्ट थिंग क्या है, साई की जो वैल्यू है एक सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। वन पार्टिकुलर वैल्यू एट ए पॉइंट। सेकेंड थिंग, psi should be continuous at all points in space। ठीक है? आपकी जो साई की वैल्यू है ऐसे नहीं है एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है? जैसे वेव आपकी एक बार बढ़ रही है, फिर घट रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो एक कंटिन्यूअस वैल्यू चलती जा रही है, राइट? तो इसी वे में जो साई की जो वैल्यू है दैट शुड बी कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट इन द स्पेस, राइट? एकदम से सडन कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देयर शुड नॉट बी एनी सडन चेंज इन द वैल्यू ऑफ साई, राइट? व्हेन वेरिएबल्स आर चेंज, जैसे ही आपने वेरिएबल चेंज किया है तो सडन चेंज नहीं आएगा, राइट? देयर should not be any sudden change in value of psi when variables are changed। ठीक है? वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो एकदम से पॉजिटिव से जीरो नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, एक स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा, स्लोली स्लोली इंक्रीज होगा, राइट? थर्ड थिंग, psi must have a finite value। psi की जो वैल्यू है एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, मीन्स दैट इज psi must become जीरो एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, राइट? फोर्थ थिंग, psi must be normalized। उसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स मैंने आपको बोला था आपके सिलेबस में है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो जो आपका साई है आइगन वेव फंक्शन के लिए साई जो है ऑलवेज नॉर्मलाइज होना चाहिए। उसका मतलब क्या है? when you are taking the psi square and in the volume element dv, in the small volume dv, and you are doing the differentiation from the minus infinity to plus infinity, then that value should be equal to 1। dv क्या है? that is the small volume element। तो आपके जो स्मॉल वॉल्यूम में साई स्क्वायर हमने लिया है योर वेव फंक्शन and you have integrated from the minus infinity to plus infinity, that should be equal to 1। value 1 आनी चाहिए, right? so these four rules should be obeyed by the eigen wave function। is it clear to you beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा बोरिंग हो गया लेक्चर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. पढ़ने की आदत नहीं है ना बहुत दिनों से। ठीक है, अच्छा एक नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल बताती हूँ फिर खत्म कर देती हूँ आज का लेक्चर। ठीक है? ओके अब मैंने यहाँ पर जो नॉर्मलाइज, हाँ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बताया आपको। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होता है? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है आप जो है एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल जो होता है, राइट, यू कैन डिफाइन दैट ऑर्बिटल बाय द साई। साई से हम उस ऑर्बिटल को बताते हैं, और जो साई दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एन, एल और एम पे डिपेंड करता है, राइट?
आपका जो साई की वैल्यू है फॉर ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल, राइट। तो ये जो एन एल 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 और एम क्या थे आपके, ये आपके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर है वो है, राइट। azimuthal quantum number. हाँ ठीक है। तो जो आपकी जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होता है, इन दैट वन व्हेन यू आर डूइंग द squaring the psi and in the small volume element dv, and you are integrating from the minus infinity to plus infinity, if that value is coming 1, so you are saying that is the normalized wave function, right. If you are taking the square of the wave function in the small volume element dv, and you are doing the integration from minus infinity to plus infinity, if that value is coming to 0, you are saying that is the orthogonal wave function. मीन्स टू डिफरेंट वेव फंक्शन लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यदि ये जो दो आपने वेव फंक्शन लिए कोई डिफरेंट है, राइट, साई है, साई 1 है और ये साई 2 है, राइट। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसकी वैल्यू ऑलवेज मोस्टली केसेस में हमारे पास 0 ही आती है इसकी वैल्यू, राइट। यदि सेम सेम है दोनों ही 1 1 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट केसेस में 1 आती है, राइट। तो ये नॉर्मलाइज हो जाता है अपने आप। तो टू डिफरेंट वेव फंक्शन यदि लेके उसको मल्टीप्लाई किया तो ऑर्थोगोनल टर्म आ जाती है हमारे पास, मीन 0 आ जाती है वैल्यू, तो हम उसको ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन बोलते हैं। कुछ केसेस में जो है हमारी 0 से 1 के बीच में Ma'am, what रहती is है। the first equation का? ये जो फर्स्ट ना नॉर्मलाइज Yes, ma'am. Normal है. वेव फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मलाइज इक्वेशन है वो, ठीक है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है उसके अंदर, ठीक है। और जब हम ये दूसरा केस ले लेते हैं, इसको साई को यदि मैं खोल के लिख दूं साई 1 और साई 2 करके लिख दें, और इन द वॉल्यूम एलिमेंट dv एंड वी हैव इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, देन यू आर गेटिंग द वैल्यू 0। सो दिस इज द ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, राइट। और यदि आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है तो यू आर सेइंग द ऑर्थो नॉर्मल। तो दोनों ही कंडीशन आ जाती है फिर, ठीक है। इज इट ओके? यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे फिर। हाँ बेटा बोलो। मैम ये ऑर्थो नॉर्मल में वेव फंक्शंस कैसे होते हैं? वेव फंक्शन तो ये ही है बेटा, वेव फंक्शन तो सेम ही चल रहा है, बस उसकी वैल्यू जो है इनके बीच में आ जाती है। 0 भी नहीं आती है, 1 भी नहीं आती है, एग्जैक्टली 1 नहीं मिलेगी और 0 भी नहीं मिलेगी, पॉइंट्स में या जो भी है वैल्यू आपकी आती है जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो, राइट। डिफरेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन करके जब भी आपकी वैल्यू आएगी तो इन बिटवीन दिस वैल्यूज आएगी, राइट। तो उसको हम उस कंडीशन में हम उस वेव फंक्शन को हम बोल देते हैं ऑर्थो नॉर्मल। इज इट ओके? ऑर्थो नॉर्मल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप फ्यूचर में और एमएससी वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको देंगे। इसमें क्या करते हैं हम न्यूमेरिकल बेसिस पे कोई ऑपरेटर्स वगैरह लगा के वेव फंक्शन लगा के आपको इक्वेशंस दे देते हैं और देन यू हैव टू प्रूव दैट। अभी नहीं आएगी ये चीजें, बाद में आती है, 3rd ईयर में आएगी आपके, ठीक है, अभी नहीं है। अभी सिर्फ आपको सिर्फ ये इक्वेशंस पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। इज इट ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. और किसी को कोई डाउट? Yes. No, ma'am. No, ma'am. ओके, Excuse चल me, आई ma'am. टेक अटेंडेंस। हाँ बेटा बोलो। Ma'am, may you please share the recording of the today's lecture with us? ओके बेटा, Thank you. मैंने रिकॉर्डिंग आज इसलिए कर दिया था क्योंकि अभी तुम्हारे और फ्रेंड्स आएंगे शायद, अभी स्पेशल ड्राइव वापस से खुला है। हाँ जी, टुडे इज 25th। स्नेहा प्लीज give your attendance beta. Sneha, today present or not? Then Riti. Present, ma'am. Okay. Then Gunjan. Present, ma'am. Mahima. Present, ma'am. Pritam.
प्राची, Present, ma'am. मानसी, Present, ma'am. निकेता, प्रेजेंट मैम। निकेत, निशा, निशा, दीक्षा, Present, ma'am. अंशु, प्रेजेंट मैम। अलीना, अलीना है, Present, ma'am. नैन्सी, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। काजल, Present, ma'am. मुस्कान, Present, ma'am. चहक, Present, ma'am. ऋतु, ऋतु, Yes, ma'am. ऋतु है, Yes, ma'am. ईशा, Yes, ईशा, Present, ma'am. Yes, ma'am. हिमांशी, Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। पंखुरी, ओके, पंखुरी, Present, ma'am. हम्म, Present, ma'am. यशस्वी, Present, ma'am. सुहावनी, Present, ma'am. ईशिता, Present, ma'am. दिव्यांशी, प्रेजेंट मैम। अंजलि, Present, ma'am. अंजलि 2 है, अलका, अलका, Present, ma'am. स्वाति, Present, ma'am. Present, आशा, ma'am. Present, ma'am. पंचमी, Present, ma'am. ओके, कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस नहीं बोली हो मैंने, 2 आर absent, प्रीतम एंड, हाँ बोलो बेटा, मैम आई एम प्रेजेंट। क्या नाम है? हाँ, निशा। निशा प्रेजेंट है, ओके, और प्रीतम, प्रीतम प्रेजेंट है absent है? प्रीतम और स्नेहा absent है टुडे? प्रीतम एंड स्नेहा, ओके, two absent today, Sneha and Preetam. Okay, then you can leave the class. थैंक यू मैम। Okay, beta. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. okay, beta. You can leave the today's class.